وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے معزز پردہ نشین خواتین، ہمارے ماں بہنوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ ابھی آپ لوگ سن کے تو نہیں تھکے ہیں، بلکہ بیٹھ کے تھکے ہیں بس۔ تو ہمارے بچے بہت اچھے انداز سے بیان کر رہے تھے، بہت اچھے انداز سے بول رہے تھے۔ ہمارے بچوں کی تقریروں پر ہی اگر ہمیں عمل کر لیا جائے اور بچوں کی تقریروں پر ہی اگر ہم صحیح طور پر کوشش کرتے ہوئے اس کے جیسا اگر چلا جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بچوں کی تقریریں میں آپ سنیں، پھر دیگر ہمارے مولانا لوگوں کی تقریر سنیں۔ یہ تمام تقریریں یا تو اردو زبان میں آپ نے سنا ہے، یا عربی زبان میں، یا انگلش میں۔ تو اب یہ فقیر وقت بہت ہو چکا ہے اور سننے کا موڈ بھی ذرا ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں یہ سارے زبانوں سے ہٹ کر کے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو میں تڑس کی زبان میں انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ تڑس کی زبان بولوں گا، یا نہیں تو اڑوی سوامپور کی زبان بولوں گا۔ تڑس کی بولو، کہاں کی بولوں صاحب؟ تڑس کی بولوں گا میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے میں نہ بہار کا ہوں، نہ بنگال کا ہوں، نہ یو پی کا ہوں، میں اس دھرتی کا ایک چھوٹا سا پودا ہوں، اور ہم دکن کے شہنشاہ والے ہیں، اور ہمارے دکن کے شہنشاہ جن کی زبان اردو زبان نہیں، دکنی زبان، دکنی، جس کو ہمیں کھایا کیا با، پیا کیا با، آیا کیا با، جایا کیا با، یہ بھی ایک زبان ہے۔ اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ زبان کسی عام انسان کی نہیں ہے، یہ زبان گلبرگہ کے شہنشاہ بندہ نواز کی زبان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ نواز کی زبان ہے، دکن کے شہنشاہ کی زبان ہے، اور ہم اپنے قسمت پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان والوں کو، ہند والوں کو، بھارت والوں کو کوئی امیر نواز نہیں ملا بلکہ غریب نواز ملا ہے۔ اور ہم کرناٹک والے بڑے شان سے، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اے جو ہیں آندھرا والوں، اے جو ہے بھارت کے دوسرے صوبے والوں، اے کیرلا والوں، اے بہار والوں، اے بنگال والوں، تمہیں اپنے اپنے قسمت پر کسی طور پر تو ناز ہوگا، مگر ہمیں بہت زیادہ ناز ہے کرناٹک والوں کو، اس لیے کہ پورے ہندوستان کے لیے معین الدین حسن سنجری غریب نواز کی ذات ہے، اور پورے کرناٹک والوں کے لیے الحمدللہ بندہ نواز کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف ہمارے لیے غریب نواز ہے، دوسری طرف ہمارے لیے بندہ نواز ہے۔ یہ بندوں کو نوازنے والے، وہ غریبوں کو نوازنے والے، دونوں سہارے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ زبان، ہماری زبان بندہ نواز کی زبان ہے۔ ایک شاعر کیا ہی اچھا بولا، ہمارے مخدوم سمنا کی کمیٹی کے اراکین الحمدللہ انہوں جاتے نہیں، ان کے اوپر ذمہ دار ہیں بہت، سب لوگ گئے تو نہیں رہنا چاہیے، کرسی یہ کرسی نہیں رہے تو آتے ہیں، آصف بھائی کرسی کہاں ہے، ایک کرسی نہیں دیے تو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرسی کی حفاظت جب تک کرسی والے کو نہیں پہنچتی، لائٹاں کی حفاظت، دوسرے ذمہ داریاں کی حفاظت، مائک کی حفاظت جب تک اراکین نہیں مکمل کر دے تب تک ان کو چین سے نیند یہ ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اس لہٰذا جو لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ہمیں قدر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنا وقت دین کے لیے، اسلام کے دے رہے ہیں، ان کی ہم قدر کرنا، ان کی ہم عزت کرنا، اور ہم اس لیے ہم ان کا جماعت کی ذمہ دار اراکین ہم ان کو کہتے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ تو ایک شاعر بہت پیارے انداز سے ایک شعر بولتا، کیا بول کے، تو دکنیچ ہے، تو دکن والا ہے، تو دکنیچ ہے، دکنیچ بول، تو دکنیچ ہے، دکنیچ بول، دوسرے کی کیا بولتا ہے، اپنیچ بول، دوسرے کی کیا بولتا ہے، اپنیچ بول۔ اس لیے میں اپنیچ بولنے کے حساب سے چند باتیں
ये माहौल के हिसाब से मुझे करना जरूरी था और उलमा करम हमारे जानते हैं, उसके लिए मैंने किया। उसके बाद इंशाअल्लाह चंद नसीहत की चीजें मैं बोल के अपनी बात खत्म कर देता हूँ। अच्छा, आप सब लोग सुनने के मूड में हैं या नहीं हैं? हैं या नहीं हैं? अच्छा, मैं एक मर्तबा आहिस्ता नारा लगाता हूँ, मेरे साथ आहिस्ता कौन नारा लगाता हूँ अभी मालूम करूंगा, जोर से नारा कौन लगाता हूँ अभी मालूम करूंगा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आवाज अच्छी आ रही। सरकार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, जश्न मिलादुन नबी, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तो आप नसीहत के तौर पर चंद बातें मैं अपने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा दर्द है, जो आपसे है, आपका दर्द मेरे साथ रहता है, मेरा दर्द आपके साथ होता है। जब मुझे तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज की मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं। मैं दर्द भरे अंदाज से आप तक ये बातें, चंद बातें पहुंचाना चाहूंगा। मेरे बेचारे बहुत देर से हमारे माँ बहनें बैठे हुए हैं और ये मंजर देख के मुझे हमारे मुफ्ती सलमान साहब जब आए थे ना जी, बारिश आते आते हमारे सलमान साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, रहमान साहब कुर्सियां छोड़ के वहां यहाँ मैदान में वहां भागे, यहाँ भागे, काका की जागो वत्ते सामने वाले उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने और जरा उन्होंने वत्ते थे, बाकी के सब लोग भाग रहे हैं। मगर हमारे माँ बहनों को भी उस वक्त जब बारिश आ रही थी, खतरनाक बारिश पड़ रही, हमारे माँ बहनों को उस वक्त देखा इधर आधे से ज्यादा मर्द लोगों की कुर्सियां खाली हो चुके हैं, मगर उस वक्त एक भी कुर्सी अगर खाली नहीं हुई है तो फातिमा ज़हरा की कनीज़ें हमारे तड़स के माँ बहनों की कुर्सियां थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज भी मुझे वो मंजर नजर आ रहा है। यहाँ पे सब हमारे थक चुके हैं और चले जा चुके हैं, मगर हमारे माँ बहनें अभी भी इंतजार में, और उनको वो रहता कि नहीं आखिर में दुआ होती, सलाम होती और आज की दुआएं कबूल होती बोल को हमारे औरतें अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और वो अकीदत में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहते हैं। मैं आपकी अकीदत को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और आपके गोद में पलने वाले बच्चों को 10 बार सलाम करता हूं कि जिस गोद में पलने वाला बच्चा इंशाअल्लाह कल चल के वक्त का इमाम होगा, कल चल के वक्त का रहबर होगा, कल चल के वक्त का कौम की खिदमत करने वाला बनेगा, कल चल के वो बड़ा डॉक्टर बनेगा, कल चल के बड़ा इंजीनियर बनेगा, कल चल के बड़ा आईएएस ऑफिसर बनेगा, कल चल के वो एमएलए बनेगा, कल चल के वो एमपी बनेगा, कल चल के वो प्राइम मिनिस्टर भी इंशाअल्लाह बन सकता है अगर आपकी परवरिश सही रही। सुभान अल्लाह। अगर आपने उसको बनाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बन सकता है। इसलिए पहली दरसगाह, पहला मदरसा कौन सा है? पहला मदरसा मस्जिद का मदरसा नहीं, तर्स की स्कूल नहीं, गली का मदरसा नहीं, पहला मदरसा माँ की गोद है। हुजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि तुम इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद में जाने तक, हुजूर ने फरमाया। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज जो हमें जरूरत है, आज आपके बच्चे बड़े अच्छे अंदाज से पढ़े, हमारे चंद बच्चियां पढ़े, उन्होंने जो तकरीर करे ना, वो तकरीर है, वो तकरीर को देख के तकरीर करने वाला समझता है ये बच्ची के अंदर क्या क्वालिटी, क्या बन सकती है, वो समझने वाले कुछ मालूम रहता। सुनार का काम लवार को, बोलो जी साहब, सुनार का काम लवार को, लवार का काम सुनार को नहीं आता। बच्ची क्या तकरीर करी, क्या हिसाब से करी, वो जानने वाला जानता। अब वो बच्ची के वास्ते आप क्या करना, उस्ताद के पास जाना, टीचर के पास जाना, तुम्हारे मास्टर के पास जाना, हजरतों के पास जाना या इल्म वालों के पास जाना, मेरी बच्ची ये काबिल है, मेरे बेटा ये काबिल है, सर इसे क्या बनाना, टीचर इसे क्या बनाना, हजरत इसे क्या बनाना, मेरी बच्ची तो चालाक है, मेरा बेटा तो चालाक है, मेरा बेटा यहां तक आ चुका, 7th पढ़ रहा मेरा बच्चा, 8th पढ़ रहा मेरी बच्ची, और जो है 10th पढ़ रही मेरी बच्ची, हाँ PUC फर्स्ट ईयर पढ़ रहा मेरा बच्चा, अब इसे मैं क्या बनाना। बच्चे तुम्हारे रास्ते बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनना बाबा, मैं इसे क्या बनाना बोल के आप उनसे राय लेना, उनसे मशवरा लेना। तो क्या करेंगे, उन्होंने अच्छा मशवरा देते हैं, आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते के मुताबिक आप अपने बच्चे को ढालेंगे ना, इंशाअल्लाह यकीन के साथ आपका बच्चा ऐसा कामयाब बन के आपके आंखों को ठंडक करेगा और आपको चैन सुकून देगा, आपका नाम रोशन करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, वैसा बनेगा। और हमारे पास और खास करके मुसलमानों के पास जो दिमाग है, जो सोच है,
जो इल्म है, जो विद्या है, जो एजुकेशन है, जो तालीम है, जो फिक्र है, जो उनका माइंड है, ये जो मुसलमानों के पास है, जो अहले ईमान के पास है, वो किसी के पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। इससे पहले जो हिंदुस्तान के जो है सदर बन के गए, क्या हिंदुस्तान के सदर बन के गए, जिनको हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, उनकी शुरुआत एक झोपड़पट्टी, एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान, वालेकुम सलाम भाई, एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान, छोटा मामूली इंसान, जिनको लिखने के वास्ते कन्ना नत्ते, लिखने के वास्ते बुक्का नत्ते, फटे पुराने कपड़े, एक ड्रेस है तो दूसरा ड्रेस नहीं है, वैसे इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अकल दिया, सोच दिया था, मेहनत करे, कोशिश करे, कोशिश करे, क्या बने, राष्ट्रपति बने, फिर क्या क्या बने, मिसाइल को तैयार करने वाले बने, फिर क्या बने, हिंदुस्तान के नाम को रोशन करने वाले बने, फिर क्या बने, ऐसा बने कि पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम को उनके इंतकाल पर पूरे दिन की छुट्टी करना पड़ा, उनके लिए साष्टांग नमस्कार करने पर सारी दुनिया मजबूर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोई और नहीं था, वो आपके नाम वाला अब्दुल कलाम था, समझा आप? इससे पहले वो बात, उसके बाद आपके हिंदुस्तान के वजीर तालीम, सबसे पहले जो, जरा कम कर छोड़ो सब, जरा अभी से कम कर, हाँ, एजुकेशन सचिवा सबसे पहले कौन बने थे, तालीम के मिनिस्टर सबसे पहले कौन बने थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई और नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, समझे? एजुकेशन के मिनिस्टर बने कि नहीं, अहले इस्लाम थे, थोड़ा सा उन्होंने इस्तेमाल किया अपने दिमाग को, अल्लाह ताला ने उसको उस मकाम पर पहुंचा दिया। तो आपका भी बच्चा बहुत कुछ बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं मालूम, कोशिश करते गवर्नमेंट के स्कूल में 8वीं उन्हें ढकलते पास कर रहे थे उसे, 9वीं में भी बच्चे के ना उसकी तालीम की तरफ बहुत ही कम, जरा बढ़ाओ, 9वीं में भी क्या करते हैं उसे, 9वीं में भी हमारा बच्चा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या कुछ कर रहा, किस तरीके से कर रहा, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं रहती। बच्चा हमारा मदरसा गया कि नहीं, कोई फिक्र हमें नहीं रहती। बच्चा हमारा मस्जिद जा रहा है या नहीं जा रहा, कोई हमें फिक्र नहीं रहती। बच्चा या झूठ का डब्बा इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी कोई हमें फिक्र नहीं रहती। इसमें क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इसकी कोई तवज्जो है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अफसोस के साथ आज इस डब्बे की वजह से हमारे कई एक बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। हुई कि नहीं जी, तुम्हें भी देख रहे हैं, हुई कि नहीं हुई। इसके लिए अल्लाह के वास्ते कसम खा लो, आपका बेटा रोए, क्या भी जिद करे, कुछ भी करे, जब तक उसको डिग्री के लेवल तक आपका बच्चा नहीं आ जाता, तब तक ये डब्बा उसके हाथ में, ये डब्बा दिए समझो उसे वो डब्बा बने, ये डब्बा दिए तो समझे उन्हें डब्बा बने। अब वो डब्बा कब तक बजता, कब फूटता, बोलो कब फूटता मालूम नहीं। अब कहते कि डब्बे तुम्हारे तड़स में फुटे से फुटेंगे नहीं जी, फुटे। अब्बा देखो मैं वहां जाने वाला, मुझे वहां जाने से रोकना नहीं तुम्हें, इन्हें नहीं रोक सकता। क्यों, बेटे के ऊपर मजबूर हो गया नहीं, क्यों मजबूर हुआ, अब बेटा कमाना, थोड़ा बहुत ला के देना, न तीन दिन का बाजार बंद होता, रंद ले बा। अब्बा मुझे मोबाइल होना चाहिए, पहले से हम तरबियत नहीं करे। बच्चा जिद क्यों करता, बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मान रहा, उसे पहले से ढील दिए तुम्हें, पहले से ढील दिए तुम्हें, पहले से अगर आप वो हिसाब से आप रखे रहते, ये मुमकिन ही नहीं कि बच्चा आपसे जिद करके मोबाइल ले ले, बच्चा आपके जिद करके किसी अपनी मर्जी की शादी कर ले, बच्चा जिद करके आपका घर छोड़ के चले जाए, बच्चा जिद करके शादी करके तुम ना छोड़ को चले जाए। ये क्या मुमकिन है, नामुमकिन है मेरे प्यारो, नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 4 भाई, सबके बच्चे हो चुके हैं, सबकी शादियां हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम चारों भाई मिलके हैं, चारों भाई का मामला एक साथ है, चारों भाई राय मशवरे के साथ करते हैं, चारों भाई अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, बहनों की खिदमत करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों, इसलिए कि हमारे अम्मी और अब्बा ने हमें बचपन से ही, माँ बाप क्या हैं, तुम क्या हो, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या है, ये सारे चीजों की घुट्टी हम ना फाली में रहते हुए देख छोड़े थे। जो आदमी फाली में नहीं सुधर थे उन्हें कफन में भी नहीं सुधर सकते। फालीकत हमारा माँ बहनों को अच्छा मालूम, तुम्हारा नहीं मालूम साहब, फालीकत मालूम नहीं,
بولے کیا بھی کھلا ہوگا پھالی کا معلوم ہے کہ نہیں جی؟ بچے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں کپڑے کو کیا بولتے ہیں؟ پھالی. اور کفن تو بولنے کی ضرورت ہی سے نہیں. جو بچہ کہاوت ہے ہمارے پاس, جو بچہ پھالی میں نہیں سدھریا انہیں کفن میں بھی بولے جی, انہیں کفن میں بھی نہیں سدھرتا. مطلب کیا ہے؟ جس بچے کو ہم بچپن میں صحیح تربیت نہیں کرے رہتے, اس کا صحیح خیال نہیں کرے رہتے, میرے بیٹا کیا کر رہا, مجھے اسے کیا کرنا, کب میاں کرنا, کب کھاندے بھی بٹانا, اور کب یہ لکڑی لینا, کب اس کو ڈانٹنا, کب میاں کرنا, کب محبت کرنا, یہ چیزیں ماں باپ بھی سمجھنا. ہمارے ماں باپ بھی اس پر غور نہیں کرتے. اے میرا 21 بیٹا با ارمان سی پالتو میں اسے ارمان ہے پھر 18 سال ہوں دے, تیری ارمان کہاں جاتی دیکھ, تیری ارمان کہاں جاتی دیکھ. تیری ارمان رہتی تو ہبلی میں شادی کرنا, اس کی ارمان رہتی کنور کو جانا. معلوم ہو کرتا تجھے 18 سال کے بعد کیا کرتا میرا بیٹا. بعد میں آتا حضرت بہت بڑا حادثہ ہوا میرے ساتھ, بہت بڑا حادثہ ہوا. صبر کرو جی, آہستہ بولو. نہیں حضرت بہت بڑا حادثہ ہوا. کیا جی ہوا؟ میرا بیٹا, میں اسے موبائل دلایا 17 سال کی عمر میں, 18 سال ہوا میرا بیٹا 21 بیٹا کر میں پھر گاڑی کے واسطے لون کے اوپر گاڑی بھی لے چھوڑا, جان چھوڑ کر کو گاڑی بھی لیا. 18 سال پار ہوئی, اسے کیا معلوم ہوتا کہ قانون 18 سال کے بعد شادی ہوتی کر کو. انہیں کیا کر چھوڑ رکھا. تو میں ایک رکھ لکھ بیٹا تھا, میری بھان کی ایک غریب بیٹی ہے ہبلی میں شادی کرنا کر کو, وہ کون سی ایک لڑکی کو تھی جی صاحب کنور میں, انہیں اسے کر لے تم کر رہا دیکھو کہتا. یا اللہ, بھی یکتا ہونے کے بعد اب بھی آ رہے ہیں تجھے مجھے بولنے کر. میں بولیا تو میں بولے تو کیا کرنا حضرت, مجھے معلوم ہی نہیں ہوا. میں کیا, مجھے موبائل چلانے بھی آتا نہیں, وہ ہمارا کی پیڈ کا موبائل ہے, ٹک 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 کر کے مارتا ہوں. سو وہ چھوٹا 500 روپے کا موبائل مجھے ہے, انہوں کیا کیا کہ رات بھر یوں 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 کرتے رہتا تھا جی صاحب. مجھے اب بھی معلوم ہو رہا تھا یہ بدماش میرا یکتا نا وفادار اور بدماش نکما نکلتا, اب بھی معلوم ہو رہا تھا حضرت مجھے. ہو رہا کہ نا میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اس سے بچنا ہے یا نہیں ہے ہمیں؟ کتنا بڑا خطرناک معاملہ. ماں باپ کو معلوم رہتا اس کے بچے کو, اپنے بچے کو 18 سال تک لے کے آنے کے واسطے انہوں کیا کرے رہتے ہیں, تمنا نہیں معلوم رہتا. جب تمہیں وہ حال سے گزرتے ہیں تب تمنا معلوم رہتا. الحمدللہ میرا بچہ چھوٹا بچہ ہے, بیمار پڑا, تھوڑی تکلیف ہوئی, میں ہوں بنکاپور میں, بچہ ہے تڑس میں, میرے گھر میں ابا جان ہیں, میری اہلیہ ہے, میرے چاہنے والے بے شمار ہیں. میں ان کو بول سکتا ہوں جاؤ دوا لکھ جاؤ, ڈاکٹر پاس جی کیا بلا لے کے جاؤ, مگر بارش ہو رہی, میں بنکاپور میں ہوں, بائک پہ ہوں, بچہ کہاں پر ہے, تڑس میں ہے, سب انتظام ہو سکتے ہیں, مگر پھر بھی باپ کے دل کو چین نہیں آتا جب تک کہ میں جاؤں گا نہیں, دیکھوں گا نہیں, علاج نہیں کروں گا, تب تک مجھے چین نہیں آ سکتا. یہ باپ کا کلیجہ ہے. اسی طریقے سے ماں جب بچہ یا بچی بیمار ہو جائے, پریشان ہو جائے, سردی بخار ہو جائے, ٹوائلٹ لگنا شروع ہو جائے, یا اس کو درد ہونا شروع ہو جائے, پیٹ میں سر میں درد ہونا شروع ہو جائے, باپ جو ہے تھک کے مارے اگر سو جائے, ماں جب تک بچے کو سلاتی نہیں تب تک وہ سوتی نہیں, بار بار بچہ سو گیا پھر ماں بھی سو جاتی ہے, پھر 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے دیکھتی ہے میرا بیٹا اٹھا تو نہیں ہے, میری بیٹی اٹھی تو نہیں ہے, میری بیٹی کو آرام تو ہے. ہاتھ پکڑنا, سر پکڑنا, دیکھنا, یہ کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں. کیا درد ہے, کیا تکلیف ہے, کیا محبت ہے پیارو, اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کروں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے. اس لیے یہ محبت, یہ تڑپ, یہ محنت, یہ شوق سے تمہیں جو ہے چھوٹے سے 2 کلو 3 کلو بچے کو جو ہے 25 کلو 50 کلو کا بنانے کے لیے وہ جو ہے یوں ہی محنت نہیں لگے رہتی, بلکہ خون پسینہ پلا کے تمہیں بڑا کیا گیا رہتا. لہذا ایسے ماں باپ کی قدر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. اگر وہ بچہ جس کو ہم نے اتنی محنت سے پلایا, پڑھایا, بڑا کیا, جوانے کے مقام پہ اس کو لایا, یہ بچہ اگر ہمارا نافرمان نکل جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی بیرو, کیا ہوتا ہوگا, ان کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے جتنا مرتبہ ماں کا ہے یہ نہ سمجھنا باپ کا نہیں ہے. باپ کے بارے میں حدیث پاک بہت کم لوگ بولتا ہوں, میں زیادہ بولتا ہوں.
मैं ज्यादा बोलता हूँ, क्यों? इस पर बहुत लोग कम बोलते हैं। बाप का मर्तबा सुनो साहब, मखदूम सिमना के कमेटी वाले और पूरे हमारे इस मोहल्ले के, इसके मोहल्ले का नाम क्या रखा सब तुम्हें? कश्मीरी नगर। हाँ, आला हजरत फाजिल कश्मीर मकबूल अहमद शाह कादरी, उनके चाहने वाले बहुत हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। काश्मीरी नगर के तमाम मेरे माँ बहनों और तुम्हारे मेरे इस्लामी भाइयों, सरकार ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप का मकाम क्या हुजूर ने फरमाया? बाप जन्नत के कई दरवाजे हैं, उसमें से बीच के दरवाजे का नाम बाप है। सुभान अल्लाह। जन्नत के बीच दरवाजे का नाम बाप है। मतलब क्या है? अगर तुम जन्नत के बीच दरवाजे में से अगर जाना चाहते हो तो अपनी बाप की इज्जत करो, बाप का ख्याल करो। एक दूसरी हदीस ये है कि वालिद जो दुआ करता है, वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में और माँ की दुआ अपने बेटे के हक में, वालिद की भी दुआ, माँ की भी दुआ अपने बच्चों के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, अब अंदाजा लगाओ। अब एक नबी दुआ करे, एक रसूल दुआ करे, उसकी दुआ कबूल होती कि रद्द होती? साहब ईद मात निम तिड़ा करता हो इल्री साहेब रो मत हेल रही है ना रहा, कबूल होती या रद्द होती? कबूल होती। जोड़ा घेड़ बक्सल, कबूल होती या रद्द होती? माशाल्लाह कबूल होती। कब? जबकि दुआ करे, नबी दुआ करे, रसूल दुआ करे तो वो दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माँ बाप का मर्तबा बताते हुए फरमाते हैं कि इनकी दुआ में अल्लाह वो तासीर रखा है कि इनकी दुआ ऐसी है अपने माँ बाप अपने बच्चों के हक में जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। इंशाअल्लाह माँ बाप भी जब अपने बच्चे के वास्ते दुआ करते ना, उनकी दुआएं बहुत 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 कबूल होती है। और मुझे ये जो देख रहे हैं, मैं जैसा भी हूँ, जिस तरीके से हूँ, मेरे साथ मेरी माँ बहुत 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 दुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुछ भी है, मैं जितना भी हूँ, जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी अल्लाह ताला मुझे दिया है, ये सब का सब मेरे माँ बाप की दुआ है। मेरे माँ बाप की दुआ है। मेरे अम्मी जान बोले, बेटा मैं बार बार बोलती थी सब लोग हज को जा रहे हैं, उमरा को जा रहे हैं, मेरे बेटा क्या क्या की दुनिया का वहां गया, वहां जा क्या क्या सिखाया इन्हें, सब लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग जाना, अनपढ़ा भी जा रहे हैं, गंवारा भी जा रहे हैं, क्या कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। मेरे बेटे के जाने का मौका कब मिलता कि बोल मैं दुआ करती थी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही तेरा वीजा लगा, जैसे ही तेरा जाने का ऐलान हुआ, मैं समझ गई मेरी बार बार दुआ का ये नतीजा है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे बच्चों और बुजुर्गों दोस्तों, आप लोगों के साथ भी यही मामला होगा अगर आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहोगे। तो लिहाजा माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का ख्याल करना, और आप सब माँ बाप की जिम्मेदारी ये मैं बताना चाहूंगा, आप अपने बच्चों के लिए क्या, आप अपने बच्चों के वास्ते उनकी तरबियत की तरफ खास तवज्जो देना। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा किस तरीके से पढ़ रहा है, मेरा बेटा के अखलाक क्या है, तरबियत क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी तरफ आप तवज्जो दो ना। दीन की भी तालीम, ये तो हमारे घर की तालीम, दुनिया की तालीम की तरफ खास तवज्जो दो। 10वीं पढ़ाओ को, PUC सेकेंडरी पढ़ाओ को खत्म करने की कभी कोशिश नहीं करना। कोशिश करो, आपके 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक बेटे को तो आप काबिल बनाना, एक बेटे को तो डिग्री होल्डर बनाओ, एक बेटे को तो आप उससे कुछ तो एक मकाम पे पहुंचाओ ताकि वो बच्चा अपने पैर पे खड़े होकर शान के साथ जिंदगी गुजार सके। अब हम कितनी भी मेहनत करो, कुली मजदूरी करके 500 से लेकर के 800 रुपए तक होता कमा सकते हैं, मगर आप मेहनत मशक्कत करके आप अपने बच्चों को बड़ा मकाम दिलाएंगे, डिग्री होल्डर बनाएंगे, उसको जो है आप जो है डिग्रियां कराएंगे, MA कराएंगे, BA कराएंगे, MCOM कराएंगे, उसको जो है BSc कराएंगे, उसको भाई बड़े बड़े डिग्रियां कराएंगे। इंशाअल्लाह वो बच्चा महीने में 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए कमाने के लायक बनेगा। सुभान अल्लाह। ये मेहनत आपकी सिर्फ 4 साल 5 साल, तवज्जो दो, इंशाअल्लाह एक बच्चा रहेगा पूरे कुंबे को संवारेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद बच्चा भी खुद मुख्तार रहेगा। आप भी आज एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कितने मौके नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप भी मौजूद हैं, साथ देने वाले मौजूद हैं, कभी भी जरूरत पड़े ये बहुत सारे जिम्मेदार हजरात हैं। देख बा मेरा बेटा इतना पढ़ा, आगे जाने के वास्ते क्या भी नहीं है, तुम्हें क्या भी करे तो आगे मेरा बच्चा जाता, आप लावर्जी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे मुसलमानों में खैर खा लोग
हिम्मत देने वाले लोग, मदद करने वाले लोग लाखों हैं, मगर उनके पास मदद लेने का तरीका हम ना आता नहीं है। आप लाओ ऐसे बच्चों को, इंशाल्लाह ये सारे लोग इंशाल्लाह मिलकर के मदद करेंगे, तो वो बच्चे को हम मदद करेंगे। ऐसे जगह पर हम खर्च करना, अभी हमारे अनवर साहब बोल रहे थे, हाजी साहब क्या बोल के कि लंगरा में नको खर्च करो, सही बात है, बंद करो लंगरा में। उर्सा में इकट्ठा करना वत्ता उर्स में, कव्वाली में, बैंड बाजे में लाखों रुपए उड़ा देते हैं। क्या रिजल्ट आया? कई वास्ते करे, क्या नतीजा निकला, क्या मिला? ननगे गुर्तिल्ला, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। फिर क्या करे? 2 लाख रुपए गए देखो हजरत उर्स में, फिर क्या करे? डीजे में 2.5 लाख रुपए गए देखो हजरत, दूसरे दिन क्या हुआ इससे? कुछ नहीं हुआ। वो पैसे अगर चंद ऐसे काम में लगा देंगे, हमारे तड़स के 5 बच्चे, कितने? सिर्फ 5 जते ने 5 बच्चे हमारे तड़स के जो है मास्टर बन गए, टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, बड़ा पीएसआई बन गए, बड़े जो है तहसीलदार बन गए, पीडीओ बन गए। इंशाअल्लाह ये 5 बच्चे आपकी तरस की तकदीर बदल सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं किसके पैसों से वहां तक पहुंचा हूं। उनको दर्द रहता है कि नहीं जी? नहीं, मेरे इन्होंने चाचा जान दिए थे, इन्होंने मामू जान दिए थे, उन्होंने हेल्प करे। सब लोगों की हेल्प वैसे 5 बच्चों के वास्ते हम करना, ये तालीम की ये जज्बा रखो। आप ये कभी न को सोचो मेरे बेटा नहीं पढ़ रहा, जरूरत है क्या करना, नहीं, हिम्मत रखो, सोच रखो, फिक्र रखो कि मुझे कुछ बनाना है, दिमाग रखो, सोच बड़ी रखना। हम जो झोपड़ी में रह करके भी ताजमहल की सोच रखना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ताजमहल में ही बैठाता। सोच वैसी रखना, ताजमहल में रखो तुम्हें झोपड़ी से रखा, सोचे फिर बाद में झोपड़ी तुम्हारा ठिकाना। सोच बड़ी रखना, हम जैसी सोच रखेंगे वैसा हम बने। बच्चों को वैसे अभी से बच्ची क्या बनती तू उसे रटा देना, मैं डॉक्टर बनता हूं, मैं इंजीनियर बनता हूं, मैं लॉयर बनता हूं, मैं टीचर बनता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनता हूं, मैं पीडीओ बनता हूं, मैं बड़ा जो पीएसआई बनता हूं, मैं एसआई बनता हूं, मैं जो बड़ी डिग्री वाली बनता हूं, मैं आर्मी बनता हूं, वो बनता हूं, ये बनता हूं। पहले से उनकी दिमाग भरो, वो तेरे पर चला, उसी नियत पर आप कोशिश करो, इंशाअल्लाह ये फकीर की जबान है। आप ये नियत करो, ये इरादा करो। हमारे माँ बहने दुनिया का नियाजा करते हैं, 21 बकरा तुम्हें बोले रहते हैं, 6 बकरे की नियाज उन्हों कर कह रहता हूं। बाद में आने में कितने करे जी नियाज? 4 बकरे की करी देखो मैं कि वो काम जल्दी नहीं होता था, उसके लिए मैं 4 बकरे की करके कहता हूं। जब उन्होंने दुनिया के नियाजा करते ये सब के लिए, इसके लिए उन्होंने 4 बकरे नहीं 8 बकरे की नियाज कर खाते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर बनना, मेरी बेटी इंजीनियर बनना, इंशाल्लाह ये सोच रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे आप लोग ये सोच, इंशाल्लाह इस अंदाज से आप कोशिश करो तो फिर हमें कोई पकड़ने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक अभी बहुत कुछ बोलना है, फिर कभी मौका मिला तो इस पर कलाम करेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है, जितनी भी बातें कहे गए उस पर आप सब इंशाल्लाह अमल करें और उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप कोशिश करें। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है, रब ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जाबिर भाई जरा तुम्हारे चाह से तबरुक लेता मैं, उसके बाद तुम्हें मैं मिलकर जा खड़ा घर तरफ, जरा आग छोड़ो तबरुक तुम्हें देखते जरा, मुझे तुम्हारे छात का तबरुक खाना चाह रहा हूं मैं आज। नहीं जा रहा क्या इधर? जरा आग छोड़ो। हाँ सलाम नहीं, फातिहा कर को सलाम पर लास्ट में सलाम कर खत्म छोड़ेंगे।